Hello everybody, I'm really very sorry I was not able to upload any of the videos since last few months because I was very much busy in the hectic schedule of KV and there's a lot of work to do. Okay, but I'm free now in my autumn break and I'm very much free to answer all your queries. And the first question that I got on one of my video to answer is that please make a detailed video on your interview. Well, I have already made one, but I guess उसमें कुछ 2-4 points छूट गए रहे होंगे. So let me answer all the queries here. I'll be very fast. The first thing is that my interview was in the main campus of IIT Bombay, and I was very sick that day. I was the third person to be called for the interview and I was not looking presentable, though I planned it a lot, but that couldn't happen. Then the document verification round was there. I cleared it out and then I went for the interview. I was waiting for my turn, and when I was called inside, I just went there. Look, in the panel there were 4 people, 3 gents and 1 lady. One lady was the psychologist, and psychologist is 100% surety will be there that one lady or a gentleman will be the psychologist there in the panel of KV. So I already knew that that one of the person among all these 4 people is definitely the psychologist, but I was not aware who the person is, whether the person is the male or the female. But I found it out because I also have got to know already that the psychologist is a person who never speaks anything in between or just keeps blank expressions on his or her face. So I recognized the ma'am that she was not giving any expression, whether I was saying the right answer or I was giving the wrong answer. No expressions, just blank expressions, and she didn't even ask any single question to me. So I was damn sure that she is the psychologist. Apart from them, one person is the subject expert. He can be from the university or degree college. Then one could be the principal of that particular KV, and one person can be the from the administration. Okay, so you have to impress all the 4 people by your knowledge and your teaching skills. They asked me some of the psychological questions, situation based questions, and difference between IQ and EQ, like a student is behaving like this, what should you do to treat that student or to make him or her study well or focus on his or her studies and all. The second thing is that they asked me about the questions from my post graduation, that you have done PG, so what are the writers that you studied there, and then they started asking questions from the writer, and काफ़ी deep questions थे PG से, and like 2 वर्क्स, किसी भी राइटर के 2 वर्क्स को कॉन्ट्राडिक्ट करके क्वेश्चंस पुटअप करना, और किसी कैरेक्टर बेस्ड, किसी कैरेक्टर का कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, उसको ऐसे क्यों नहीं था, ठीक है, तो वैसे टाइप के सिचुएशन बेस्ड लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेमो, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. मैंने रोड नोट टेकन प्रिपेयर किया था बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट उन्होंने रोड नोट टेकन, मतलब उन्होंने जो मैंने डेमो प्रिपेयर किया था वो डेमो उन्होंने लिया ही नहीं. उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन जो था, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वॉट एवर आंसर्स यू आर गिविंग, दे विल राइज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर गिवन आंसर्स ओनली. वो आपने जो आंसर दिए उन्हीं में से कुछ ना कुछ टॉपिक उठा लेंगे और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर देंगे. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में उन्होंने मेरे यहाँ से कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के नाम पूछे थे, एंड मैंने उसमें से नाम लिया, एंड उसमें से एक ट्रैवलॉग राइटर निकल गया, एंड ट्रैवलॉग की इंपॉर्टेंस उन्होंने पूछ दिया विथ द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रैवलॉग राइटर. एंड वो क्योंकि वो हिंदी लिटरेचर से थे, एंड आई डिडंट प्रिपेयर द हिंदी लिटरेचर. मैंने सोचा कि इंग्लिश लिटरेचर से रहते तो शायद इन लोग मेरे से पूछ सकते हैं, बट हिंदी लिटरेचर से थे तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. दो ही द पर्सन वॉज फ्रॉम माई सिटी ओनली, एंड उनकी बुक्स का रेफरेंस लेकर के, बट बुक्स क्योंकि मुझे नाम ही नहीं पता था तो मैंने कुछ सेकंड का 30 सेकंड्स का आई थिंक पॉज लिया होगा, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग. फर्स्ट तो मैं आई गॉट ब्लैंक कि मैं क्या करूँ, ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ था. तो पहली चीज़ आपको ये करना है, आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है डेमो के लिए, आपको डिनाई नहीं करना है कि सर सॉरी सर, या फिर सॉरी मैम मैंने प्रिपेयर नहीं किया, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन आई टीच द वन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. तो वो उनको दिमाग में ये आएगा ना, आपके बारे में एक इमेज बनेगी कि आप गिव अप करने वाले पर्सन हैं, आप इजी टास्क लेना चाहते हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आप हाथ खड़े कर देते हैं. तो इस तरीके की सिचुएशन आपको इस तरीके का अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है. तो ये चीज़ था.
तो मैंने वहाँ पे बुक एक्स बुक वाई बुक जेड करके रेफर कर दिया बुक्स को, एंड मैंने फिर ट्रैवल की इंपॉर्टेंस समझाई क्लास 7 के स्टूडेंट्स को। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेसिकली वो आपका चेक करता है, ठीक है। सो दिस वाज माय वेल, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू शुड नॉट लुक नर्वस एट ऑल, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो होता है पैनल में, वो पर्सन यही जज करता है कि आप आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। आप क्लास में पढ़ा किस तरीके से है, आपका टोन कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो सारी चीजें बिना आपसे सवाल किए ही सब कुछ आपका जज कर रहा होता है वो पर्सन। तो सबसे पहली चीज, जब आप एंटर करें तो सबसे पहले पैनल में अगर कोई लेडी बैठी है तो आप सबसे पहले लेडी को गुड मॉर्निंग वगैरह पहले लेडी को विश कर दीजिए। उसके बाद आप जो जेंट्स वगैरह लोग वहां पे बैठे हैं आप उनको विश करिए, ठीक है। ये थोड़े से एथिक्स होते हैं इंटरव्यू पैनल में जाने के। सेकेंड थिंग इज दैट जब तक आपसे ना कहा जाए आप चेयर के पास खड़े रहिए, पर जब तक आपसे ना कहा जाए प्लीज मत बैठिएगा। जब आपसे कहा जाए बैठने को तो आप एक हल्की सी स्माइल रख, पूरे इंटरव्यू सेशन के टाइम पे आपको एक हल्की सी स्माइल तो मेंटेन करनी है। फिर आप जो कि थैंक यू बोल करके, स्माइल करते हुए थैंक यू बोल करके आप चेयर पे बैठ जाइए। एकदम पीछे होके मत बैठिएगा, आप थोड़ा बीच में बैठिए एंड सिट स्ट्रेट। आपने अपना ये क्या बोलते हैं, पीठ सीधी रखनी है, अपने दोनों हाथ को अपने थाइस पे ऐसे घुटनों तक रखने हैं। और आंसर करते करते आप जब नर्वस फील करने लगे तो अपने पैर ऐसे ऊपर नीचे जो हम झंझनाते हैं वो चीज़ें नहीं करनी है, वो नर्वसनेस की साइन होती है, आपको नहीं पता चलेगा, बट सामने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है ही और शी विल जज यू दैट आप नर्वस हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद द सेकेंड थिंग इज दैट हम आंसर करते करते हम क्या करते हैं, घुटनों पे जो हमने पैर रख रखा है वहाँ हम क्या करते हैं कि हम अपने हाथों को ऐसे करके अपने नाखून तोड़ने लगते हैं ना, हम आंसर देने लगते हैं। सो यू शुड ऑल्सो नॉट डू दिस थिंग ऑल्सो, एंड यू शुड अवॉइड दिस ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ nervousness. And for men, when they stand, they put one of their hand in the pocket while teaching or while speaking anything. So this should also not be done. आपको दोनों हाथ बाहर रखने, एक हाथ में चॉक ले रही है, एक हाथ बाहर रखे रहिए, वो आप समझाने वगैरह के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डेमो दे रहे हैं तो बोर्ड राइटिंग में आपको क्या करना है कि लेफ्ट कॉर्नर पे आप जो है कि आप सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट टीचर का नाम, पीरियड कौन सा चल रहा है, डे कौन सा है और डेट क्या है, ये चीज लिख दीजिए। टीचिंग लर्निंग आउटकम भी आप अगर लिख देंगे तो बहुत बेटर रहेगा कि आप ये जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इससे क्या लर्निंग आउटकम आप निकलवाने वाले हैं, तो आप किनारे में मेंशन कर दीजिए, बोर्ड पे हेडिंग डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है कि बच्चों को इंटरैक्टिव सेशन वहां पे पोर्ट्रे करिए कि आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, कि आप ज्यादा काम नहीं कर रहे, बच्चे ज्यादा आंसर कर रहे हैं, आप सवाल कम करें, बच्चे ज्यादा आंसर करें, या फिर बच्चे सवाल ज्यादा कर रहे हैं, बच्चों की क्वेरी ज्यादा है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द सेशन विल बी वेरी मच इंटरैक्टिव एंड द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुड बी देयर, इंटरैक्टिव बेस्ड लर्निंग शुड बी देयर। यू शुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज and they will feel easy to answer those questions, okay। and उनका इंटरेस्ट पहले आप खींचिए अपनी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, उसके बाद आप टॉपिक पे कूदिए, ठीक है। तो जो मेरा टॉपिक था ट्रैवल का इंपॉर्टेंस बताना था क्लास 7 के स्टूडेंट्स को, तो मैंने ऐसे इमेजिन कर दिया था कि दैट आप लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल हैव कम आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशन, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टुडे एंड आई वांट टू नो दैट वेयर डिड यू गो इन योर हॉलीडेज, वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज, सो हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू अ हिल स्टेशन, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। ऐसे कर करके मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अच्छा, जो लोग नहीं गए, आपको क्या लगता है कि ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अच्छा ठीक है, आपको पता है इस बारे में किताब भी लिखी जाती है, व्हाई द बुक इज बीइंग रिटन ऑन ट्रैवलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंस क्या होती है, जोग्राफिकल लोकेशंस एंड ऑल, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं ट्रैवलॉग में वो सारी मेंशन कर दी मैंने। एंड देन आई मेड देम अंडरस्टैंड कि ट्रैवलॉग राइटिंग के फादर होते हैं लिटरेचर में, और फिर उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, किताबों की किताबें ये किस बारे में है। सो ऑल दीज थिंग्स जो है कि, और आपको इस तरीके से आंसर करने होता है। सो यू हैव टू इम्प्रेस द साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू इम्प्रेस द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यू शुड बी वेरी मच फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज एंड वेरी मच फ्लुएंट इन योर सब्जेक्ट। एंड अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं और आपकी लैंग्वेज पे ही कमांड नहीं है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी हो गया, तो आपकी फ्लुएंसी जो है कि उस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश टीचर के लिए आप जा रहे हैं TGT और PGT, देन यू शुड नॉट एट ऑल
use Hindi while teaching in the while giving answers in the interview or while giving the demo. अब क्लासरूम सेटिंग में आप चाहे तो कर सकते हैं सिलेक्शन होने के बाद, उसके पहले नहीं करना, इंटरव्यू में नहीं करना ये चीज़, ठीक है। सो इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन आस्क। पीजीटी का इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था, मैं कुछ नंबर थे, 6 नंबर से रह गए थे पीजीटी का इंटरव्यू, बट उसमें आप मास्टर्स की जो डिग्री है आपकी, उसका जो सिलेबस था उसमें आपको कमांड रखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन स्टडी।